Okay, is it clear? Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we start our JavaScript formally. Today we have a understanding of what JavaScript is. Okay, why are we gonna read it, and what is it all about, and where it can be used and all. We have a little idea about JavaScript. Today we have this introduction video where we actually introduction lecture actually, and also recording it, where we understand what is JavaScript doing. Basically, the JavaScript, where will you use it? Will you use it in the front end or you will use it in the back end? Wrong. It is used on both sides. Okay, that's the beauty of JavaScript. JavaScript, basically, when you actually run a JavaScript, write a code for the JavaScript, you need some kind of a rendering engine. Okay, for example, you are running C++ or Java, you have some compilers or whatever you have, interpreters and so on, right? And who is doing who will actually interpret it? It's also actually also the interpreted, and we have the actually hotspot compilers now who can compile it. Actually, it's not compiler, but it's interpreted language. Okay, it's a proper language. Okay, we had HTML and CSS. They were not languages, they were like markups, and this was for the aesthetic purposes and all. Okay, and JavaScript is a proper language, and it has nothing to do with the Java. Keep that in mind. It is named as JavaScript. We'll discuss why it is named as JavaScript when it's nothing to do with Java. We'll tell you that thing. Okay. So there's no relation between JavaScript and Java. Keep that in mind. And when we say HTML and CSS, we have in the browser the rendering engine, which will help to render the HTML, whatever the code that is, or CSS code. It renders that. Same is for the JavaScript. Same for what? That we have, say for example, we have the if we have Firefox, okay, we may have the Chrome. Where Chrome we have the V8. V8 is the rendering engine. It is the rendering engine for the JavaScript. Okay, and in Firefox we have the SpiderMonkey. SpiderMonkey is the rendering engine for the Firefox, which renders the JavaScript. Now question is, if we want to run JavaScript on the server, how is it possible? Because there is no browser, there is no front end. In the server, we don't have that interface where the user will interact or not. We don't have that interface. Some processing happens on the server. What happens in the server is the processing. What? Right? Say, for example, you have in database, say for example, you have a database and there are some data, say for example, it's a shopping cart and there's a lot of data. And you are seeing, give me the discount, 60% discount articles only. So your server will do that job for you and give it to the front end. Now the front end, only those things will come where the 60% discount is there. And this server has nothing to do with the interface and all. It's all about processing, which is working on the back end and which is working on the database. You understand? So what will JavaScript do here? Because JavaScript का rendering engine किधर है? Browser में, है ना? तो browser तो उधर है नहीं. तो JavaScript backend में कैसे काम करेगा? तो उसके लिए बेसिकली क्या किया था काम, एक बंदा आया था Dahal के नाम से. What he did is he used C++ code and combined it with the V8, जो rendering engine आपका था ना इसका Chrome का, जो Chrome का rendering engine है V8, उसको और C++ कोड में एम्बेड करके उसने एक रनिंग एनवायरनमेंट बनाया सर्वर्स के लिए ताकि जावास्क्रिप्ट सर्वर पे भी एग्जीक्यूट हो सके. And that thing is called as a node. Because what? You must have heard about Node.js. It is that thing only. So Node.js is actually the combination of C++ code and V8, जो rendering engine हमारे पास already है Chrome को for JavaScript. वो लेकिन V8 जो है वो कहाँ पर है? वो ब्राउजर्स में है ना? That's in browser. थोड़े आगे आ जाओ यार. कौन सी चेयर दी मुझे? ये खराब वाली चेयर. इसको क्या हो रहा है? सर को गिराने का प्लान तो नहीं था आज? Also, there is it. Okay, guys, spider monkeys not with. These are also spider monkeys. आगे आ जाओ आप. हेलो, आप आगे आ जाओ ना, मुझे नजर आना चाहिए. पीछे रहते ना इससे मुझे नजर नहीं आता. सो क्रोम के पास ऑलरेडी V8 था ना,
रेंडरिंग इंजन था ना V8, ठीक है, जो रेंडर कर रहा था, जैसे ना इंटरप्रेटर हमारे पास है जो इंटरप्रेट करेगा इसको, उसको, लेकिन एनवायरनमेंट ब्राउजर था, वो ब्राउजर वाला एनवायरनमेंट C++ से दे दिया सर्वर के अंदर। यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल हो सकता है और बैकएंड में भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो, यू कैन डू इट ओनली जावास्क्रिप्ट इन फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। एचटीएमएल सीएसएस तो होता ही है, वो तो पता ही है, वन नहीं जरूरत ये हिंट, अंडरस्टैंड। अदरवाइज हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लगता था फ्रंट एंड में, और बैक एंड में आपका PHP हो गया, जावा हो गया, ठीक है, जो कि जो ना कंपाइलर पे रन हो सकती है। It's a language, not framework. It's a programming language, proper programming language. Then we have frameworks. It's a programming language, but we have many frameworks in it. जो भी आपने पढ़ा गलत पढ़ा है, ठीक है? It has proper variables, has loops. It's object-oriented programming. It's what? जो आपने पढ़ा है गलत पढ़ा है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क्स अब इसमें क्या हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में, और एक चीज याद रखना है, जावास्क्रिप्ट इज वेरी फेमस नाउ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल हो रहा है, बैक एंड में भी इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये इजी है, ठीक है, इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे जावा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें भी इनहेरिटेंस, वो सारी चीजें, क्लासेस एंड ऑल है। हालांकि इसमें भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा की तरह, पाइथन की तरह नहीं है जहां सारा क्लास है वगैरह है, ठीक है, इसमें भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ओके, लेकिन इसमें क्लासेस भी है। इसमें क्या है, अब ये फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल हो रही, कहां हो रही है, बैक एंड में भी इस्तेमाल हो रही है। और इसके बाद जो है लोगों ने अब फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, ठीक है, जैसे आपको एंगुलर है, आपका फेसबुक, वो सारा जावास्क्रिप्ट बना है, उसका बैकएंड भी जावास्क्रिप्ट बना है, उसने रिएक्ट इस्तेमाल किया है फ्रेमवर्क। दीज आर फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू, ओके, व्यू.js, दीज आर द फ्रेमवर्क्स। व्हाट, ये फ्रेमवर्क्स आपको रेडीमेड चीजें देती हैं जिससे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट इतना फेमस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सारी एप्स बनेंगी आपको, यानी कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म, जैसे मेरे को भाई साहब, मेरे को आप वेब ब्राउजर के अंदर मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, क्या बनानी है, जिसमें मैंने कहा एंगुलर फ्रेमवर्क आपका लगता है, व्यू लगता है आपका, या रिएक्ट लगता है आपको, ओके। आप कह रहे नहीं नहीं सर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है, मुझे क्या बनानी है, desktop application is like these desktops where we don't have a browser। एक हो गया आप ब्राउजर में कोई चीज रन कर रहे हो, एक हो गया आपने सी में, C++ में या जावा में सॉफ्टवेयर बनाया, डेस्कटॉप ऐप बनाई, वो सीधे रन हो रही है, खुद अपनी एक सी बन रही है उसकी, उसको ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं डेस्कटॉप एप्स। उसके लिए एक फ्रेमवर्क आती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन JS एक फ्रेमवर्क आती है, उसको इस्तेमाल करके हम डेस्कटॉप एप्स बना रहे हैं, ठीक है जी, ओके। हमें मोबाइल ऐप बनानी है, ओके, इसमें यूजिंग जावास्क्रिप्ट हमारे पास इसमें फ्रेमवर्क आती है, आयोनिक फ्रेमवर्क आती है, ठीक है, जो हमें मोबाइल एप्स को बनाने में लगती है। या हमारे पास रिएक्ट, नेटिव रिएक्ट होता है हमारे पास, नेटिव रिएक्ट फ्रेमवर्क, ये भी फ्रेमवर्क है, ओके। नेटिव रिएक्ट फ्रेमवर्क हमारे पास है जो हमें मोबाइल एप्स, और आयोनिक फ्रेमवर्क है जो मोबाइल एप्स बनाने में लगती है, ठीक है ना। ये आप सर्वर साइड और फ्रंट साइड, आपको पूरा फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो सकता है आपकी आपकी एप्स बनाने के लिए, जिसमें फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा। और मोंगोडीबी हम उसमें रखते हैं एज ए डेटाबेस। मोंगोडीबी जो हमारा होगा विदाउट एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस हमारे पास है, वो हमें इस्तेमाल करके फुल स्टैक ऐप हमें बनेगी। ई कॉमर्स साइट बनाते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट और कुछ नहीं, नो पाइथन, नो जावा, नथिंग एल्स, ठीक है जी। तो इस वजह से इस, और ओपन सोर्स है, क्या है, और इसमें लोग फ्रेमवर्क्स बनाते जा रहे हैं, बनाते, इट्स इवॉल्विंग, डे बाय डे इवॉल्विंग, हर दिन ये बेटर बनती जा रही है, ठीक है ना, इट्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो दैट इज व्हाई वी हैव मोर मार्केट इन द जावास्क्रिप्ट। अगर कोई वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, उसका HTML CSS तो बच्चों वाला चीज हो गया, ठीक है, HTML CSS तो बच्चों वाला चीज, वो तो है ही है, वो तो है ही है ना,
लेकिन जावास्क्रिप्ट इज द एक्चुअली द लैंग्वेज व्हिच यू हैव टू मास्टर इफ यू वांट टू बिकम वेब डेवलपर्स। अगर आपको ये कैरियर बनाना है तो जावास्क्रिप्ट इज द मस्ट लैंग्वेज, यू हैव टू रीड इट इनसाइड आउट। ओके, यू अंडरस्टैंड? अब जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली ये शुरू हो गया था, असल में जंग चल रही थी इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्सेस नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप, ये दो ब्राउजर्स हमारे पास थे पहले 90s से पहले जब शुरू हुआ था इंटरनेट। ओके, 1990 ऑनवर्ड्स हो गया ना फिर ज्यादा इंटरनेट का बूम, उस वक्त लग गया इंटरनेट एक्सप्लोरर से नेटस्केप नेविगेटर के दरमियान कंपटीशन। ठीक है, हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपको पता ही है कि सबसे बुरी चीज माइक्रोसॉफ्ट की है तो वो यही है। ठीक है ना, इट इज बीइंग नाउ वही वाला। नाउ दैट दे हैव गॉट द एज। ओके, दे गॉट माइक्रोसॉफ्ट एज नाउ। नाउ दिस इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, दे इज गॉन केस। लेकिन पहले जब शुरू हुआ था इंटरनेट चल गया था तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया, वहां से नेटस्केप नेविगेटर था, तो उनको दरमियान कंपटीशन था। वो बोलता मैं बैठ रहा हूँ। तो इन्होंने एक बंदे को हायर किया, ओके, उसको बोला कि भाई आप एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि जो आपका HTML एंड CSS है वो आपका स्टैटिक पेज बनाने वाला है। इट विल बी ओनली स्टैटिक पेज। ज्यादा से ज्यादा आप हॉवर इफेक्ट कर सकते हो, ये छोटे मोटे चीज है, थोड़ी सी एनिमेशन कर सकते हो आप। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी जान डालेगा ना आपकी, इसमें जावास्क्रिप्ट आपकी जान डालने वाला है आपके वेबसाइट में। तो वो उस बंदे ने सिर्फ 10 दिन में खड़ी कर दी, 10 डेज में उसने जावास्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई। ओके, एंड दैट जावास्क्रिप्ट then the Netscape Navigator basically come उन्होंने पैच अप किया सन माइक्रोसिस्टम के साथ। एक तो ये वजह है क्योंकि सन ने जावा बनाया, ठीक है, और उस वक्त जावा फेमस थी। जैसे आप देखते हो यहाँ पे मुगल दरबार फेमस है तो सारी बेकरी वाले मुगल दरबार लिख रहे हैं क्योंकि दे वांट टू राइट विद दिस। मोदी जी इस वक्त फेमस है तो एवरीबडी वांट टू, अगर कोई जर्नलिस्ट भी होता है वो यही पॉलिटिक्स करके मतलब काइंड ऑफ अपने को फेमस करना चाह रहा है। जो वेव चल रही है, उस वक्त वेव चल रही थी किसकी? उस वक्त वेव चल रही थी जावा की। तो जावा एक फेमस लैंग्वेज हो रही थी। सो उन्होंने कहा कि अगर मैं फेमस होना है तो इसको साथ रखना है। और जावा के एप्लेट्स जो कि बाद में चले नहीं, एप्लेट्स उनके होते थे ना, ठीक है, जावा के एप्लेट्स होते थे, वो फिर ब्राउजर्स ने उसको सपोर्ट ही बंद कर दिया, दैट्स नॉट रनिंग नाउ। ओके, तो जावा के एप्लेट्स चूंकि इसमें चलते थे नेटस्केप नेविगेटर में, और उसमें जावास्क्रिप्ट का रोल था, जावास्क्रिप्ट यूज्ड हेल्प्ड इन दैट। और एक तो ये एक सन के साथ इनका पैचअप हो गया, और बेसिकली ये चीज था कि वी वांट टू बी फेमस लाइक जावा। जावा इंटरनेट भी इवॉल्व हो रहा था, जावा भी इवॉल्व हो रहा था, इसलिए जावास्क्रिप्ट ने नाम रखा, वरना उसको जावा के साथ कोई वास्ता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? और जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, मान लीजिए जब से हम हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स हमारे पास है एक साइड से, दैट्स कॉल्ड ECMA। Your assignment is what is this ECMA? Okay, write it down. ECMA, what is the full form of ECMA? ECMA is a standard. ECMA is what? जैसे आपका क्रोम, उसके पास V8 है, ठीक है, उसके पास क्या है, या आपके पास फायरफॉक्स है, उसके पास क्या है, स्पाइडर मंकी। उसको जावास्क्रिप्ट, आपने वेबसाइट लिखी जावास्क्रिप्ट में, दूसरे बंदे ने भी लिखी, लेकिन वो दूसरे ब्राउजर में रन कर रहा है, ये सफारी में कर रहा है, वो एज में कर रहा है, ये क्रोम में कर रहा है, वो पता नहीं किस में कर रहा है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसका वर्जन है, इट शुड बी एज पर दीज स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? ECMA। ECMA इज अ स्टैंडर्ड, जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज व्हिच फॉलो द ECMA। सो इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट के वर्जन जो है, ओके, सो वी से ES, लाइक ES5 हमारे पास था, और फिर ES6 जब आ गया तो उसमें चेंज है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, एंड सो ऑन, वी से ES7, ES8 एंड सो ऑन। ES11 2020 में हो गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज द वर्जन, यू जस्ट चेक इट आउट कि कौन सा वर्जन लेटेस्ट है इसमें, व्हिच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ ये आपके ECMA, जो ECMA स्क्रिप्ट आपकी है वो स्टैंडर्ड है और जावास्क्रिप्ट फॉलोज दैट, और ये उसके वर्जन्स हैं। अब बात आती है कि इसको रन कैसे करें। अब बात क्या आती है,
हाउ विल यू रन द जावा स्क्रिप्ट? बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट रन करनी है उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग क्योंकि योर ब्राउजर इज एनफ, you have already V8 inside your what? Okay, it is what kind of language? It is dynamically typed language. It is dynamically typed language. It is dynamically typed language. अब dynamically typed language क्या होती है कि उसमें भाई साहब आपको variables declare करने की जरूरत, you don't need to declare the variables, you understand? वो खुद ही automatic declaration होती है. Okay, it is object oriented. It is what? It is object oriented, ठीक है, इंटरप्रेटेड, कंपाइलर नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जबकि आज जस्ट इन टाइम कंपाइलर हमारे पास लगता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर हमें लगता है आजकल, जो कि हमने इसमें स्पीड करने के लिए, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यानी कि है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लेकिन कुछ कोड हम कंपाइल करते हैं, वी हैव जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसी वक्त एक कंपाइलर होता है जो उस कोड को कंपाइल करके रखता है ताकि हमारे पास स्पीड हो, क्योंकि वरना जो कंपाइलर लैंग्वेज जैसे सी हमारे पास है, सी प्लस है, वो फास्ट है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज हमेशा स्लो होती है, ठीक है, लेकिन अब जस्ट इन टाइम कंपाइलर के साथ जैसे जावा को हमने कर दिया, उसमें हमने जस्ट इन टाइम कंपाइलर लगाया जावा को भी और जावा हॉटस्पॉट भी लगाया, जावा हॉटस्पॉट एक्चुअली मेक्स इट वेरी फास्ट, डज मेक सेंस? हाँ जी, और भी सब सारे जो फीचर्स आपकी लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज में वो सब यहाँ पर है, ओके, यू जस्ट ऐड दीज फीचर्स, ऐड ऑल दीज फीचर्स, ओके, सो जावा स्क्रिप्ट की जो फीचर्स है वो आप ऐड करेंगे, और जो आप वो पूछ रहे थे वो भी आप असाइनमेंट रखेंगे, व्हाट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड अ फ्रेमवर्क, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड अ फ्रेमवर्क, दिस इज आल्सो योर असाइनमेंट। अब क्वेश्चन है कि भाई इसको रन कैसे करें, ठीक है ना, जिस तरह हमने सीएसएस देखा था, जिस तरह क्या देखा था, ठीक है, सीएसएस में कितने तरीके में हमने किया, सीएसएस क्या क्या तरीके थे, ठीक है, इसमें हमारे पास इनलाइन भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और आप ब्राउजर के कंसोल में भी इसको रन कर सकते हैं, you don't need anything other than the browser console, if you want to run you can open up the browser, any browser, like for example Chrome, I open up the Google Chrome, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको कंसोल आता है ये वाला, यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेटर वी8 लगा हुआ है, वो इस जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज आप लिखोगे इसमें प्रोग्राम, वो यहाँ पे रन होंगे, लेकिन ये शेल है, जैसे आपको कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां पे हम बड़ा प्रोग्राम नहीं लिख सकते ना, जो लाइक स्टेप वाइज, जैसे मैं मैसेज करूंगा अलर्ट, ओके, आई से अलर्ट सिंपल, एंड आई से अस्सलामु अलैकुम, and I enter, you see that message box or that pop-up box comes up with the message assalamu, because alert means to have that box, okay, dialog box, okay, alert जो आपका जावास्क्रिप्ट का है ये आपको डायलॉग बॉक्स देता है, और जो मैसेज आप करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ रहे ना ये, सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कंसोल है, इसमें कर सकते हो आप, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर आप इसमें मैथ करना चाहते हो, 23 plus 7 minus 6 and into 675 and enter, it will give you the whole thing whatever it is, ठीक है, माइनस हो गया ना, माइनस में आंसर है, whatever that is, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंस हो गया ना पहले मल्टीप्लाई कर, तो 6 into 675 बनेगा बहुत माइनस में, इसलिए आंसर माइनस आ गया, so it will be like a calculator and everything you can do on it, it is कंसोल में आप इसको रन कर सकते हैं, तो हमें पता चला कि भाई साहब जो आपका V8 है वो आपके ब्राउजर में है, ठीक है, तो इसको आप कैसे हमने खोला है कंसोल, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड कंसोल, या शिफ्ट कंट्रोल एंड जे, ओके, उससे भी खुलेगा, फिर कंसोल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल जे इज आल्सो द शॉर्टकट, लेकिन अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट जो होगा वो बेसिकली हमारे वेबसाइट को
इंटरैक्टिव बनाने के लिए है, तो मेरे को HTML CSS होना चाहिए ना जब मैंने वेबसाइट बनाई। एक बात याद रखनी है आपको कि जो आपका OneNote कौन सा है, जो आपका HTML है, अंडरस्टैंड, इट्स लाइक ए नाउन, इट्स लाइक व्हाट, एंड जो आपका CSS है, इट इज लाइक एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव मींस व्हिच क्वालिफाइज नाउन। से फॉर एग्जांपल ऐसे HTML नाउन मैंने बताया जुनैद, जुनैद सर इज योर इज अ नेम, इट्स अ नाउन। नाउ जुनैद सर कैसा है, अपनी तारीफ कर लेता हूं मैं, कोई बात नहीं, कभी कभी करनी चाहिए। से जुनैद सर इज हैंडसम, हाँ 5 मिनट के, ठीक है, तो 5 मिनट में परवाह क्या हैंडसम हो। नाउ व्हाट इज हैंडसम सेइंग, कि भाई साहब जुनैद सर कैसे हैं, it qualifies a noun, so that's an adjective. And then comes the JavaScript, it's like a verb. What I'm doing, Junaid sir is not teaching. If you say HTML and CSS, HTML will make my skeleton and CSS will make my, you know, all the beard and all, and make my skin color and all, give me all the touches, okay, the makeup shake up, but I will do nothing. I will be like a dummy if I don't have a JavaScript. So what I'm doing right now, I'm teaching, this will be done by JavaScript. If it is only HTML CSS, I will be like this, I am Junaid sir but doing nothing, okay. But if it is JavaScript, then whatever I do, it is because of JavaScript. All the functionalities I do, I play table tennis, I do this, I do that, whatever I do, it is the JavaScript. So इसलिए मैंने कहा आपको, अगर आपकी जो साइट है उसकी रूह, वरना अदरवाइज डेड बॉडी है, आपकी जो साइट है, it is dead. See, HTML will give you the structure, HTML will give you what, okay, CSS will give you, it will otherwise without CSS HTML is ugly, right, बहुत बड़ा दिखेगा ना, वो दिखेगा अजीब किस्म का, उसको कुछ स्टाइल ही ना, कलर ना कुछ, ओके, उसको मेकअप वगैरह शगैरह करेंगे, स्टाइल किससे करेंगे, CSS से। लेकिन जान कौन डालेगा, जो बिहेवियर आपका है, फंक्शनैलिटी आपकी है, वो सारी आपको देगा कौन, जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड। सो अब आती है बारी कि अगर हमारे पास गॉट 1 मिनट, व्हाट इज दिस, क्विक सर्वे समथिंग, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे फिलहाल जावास्क्रिप्ट का। हाँ मैं क्या कर रहा था, न्यू फोल्डर, नहीं बातें नहीं, बातें कौन कर रहा है, हु इज टॉकिंग, से JS, ओके, नहीं बातें नहीं यहाँ दिमाग में, ओपन विथ VS कोड से ओपन करेंगे, ओके। Now what we do here is we'll create one file here, I will call it index.html, ठीक है जी। भाई इसको क्या हो गया, why is it taking time, हाँ ना maybe updating, running the file create participants, क्या था, what is this, so we will create a file here, okay, hopefully come up, what happened, we'll cancel this firstly, wait a second, yeah बन गई बेचारी, पता नहीं क्या था, okay, this is our HTML, whatever that is, that will be HTML file, we will do it, don't worry, okay. Now see, this is my HTML, here I will have all the design and all, and I want to right now show how we run the JavaScript, okay. फॉर एग्जाम्पल यही अलर्ट वगैरह मुझे करना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H1 मेरे पास है, टैग है, और यहाँ पे क्या लर्निंग JavaScript, ओके, मैं कंट्रोल S करूंगा इसको, ठीक है जी। लेट अस ट्राई टू रन इट समवेयर, so we will have what, it will only come up learning JavaScript. Now I want to, this is HTML only na, this is HTML learning JavaScript, this is HTML only, right. Now I want to put JavaScript in it, where will I put it, I can put it here only, I can put it in a different file, so we'll show both ways. So if you want to put it here only, you can put up in a head, you can put up in the body,
wherever you like, it doesn't matter. Okay, so wherever you like, better is to keep it at the end of the body, because JavaScript किस पे ऊपर काम करेगा, सोल किसके ऊपर काम करेगी, सोल जब जुनैद सर बना होगा, उसका स्ट्रक्चर भी बना होगा, उसको ये होगा, तो बेटर है कि आप कहाँ करो, वो एंड पे ही करो, बॉडी के जब लास्ट टैग है, क्लोजिंग टैग है, उससे पहले करो। लेकिन हम ऐसे करते भी नहीं है, हम अलग फाइल में रखते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है स्क्रिप्ट टैग, क्या है, और ये रहा स्क्रिप्ट टैग। इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, आपकी मर्जी। जैसे मैं अलर्ट लिखूंगा फिलहाल, यही जो हमारे पास लिखा था ना वहां से, अलर्ट बॉक्स है ना हमारे पास, तो उसमें मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम सलाम, and terminator, we have, this is a proper programming language, we have terminators here like C. Okay, don't forget terminator, not, it's not like CSS and HTML, but we don't have terminators. Here we have, if I control S it and I go here, it is telling me okay अस्सलाम, उसके बाद आपका वो चल रहा है, ठीक है। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, पहले कौन चल रहा है, खुद चल गया ना वो, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं सर हमें इंदर नहीं लिखना, क्योंकि कल को जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हमारी पूरी की पूरी उसमें लॉजिक होगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो हम फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, we'll go here and keep one folder for the JavaScript only, okay? इसके अंदर ही बनाया इसने, सॉरी, ओके, हाँ इसी के तो अंदर बनाना, सॉरी, ठीक था, इसी के तो है, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर मैं बनाऊंगा जेएस फोल्डर, जेएस। अब इसके अंदर जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, मैं उसका नाम रखूंगा स्क्रिप्ट, लेकिन डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट, बस अभी जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट वाला चीज है जो मैंने यहाँ पे की, मैं इसको नहीं चाहिए मेरे को, अब इसको नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, ये बंद करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगा अलर्ट, और मैं कहूंगा सिंगल कोड करें या डबल कोड करें, आपकी मर्जी है, अस्सलामु अलैकुम, व्हाटएवर, ओके, 0 के साथ, ठीक है, आपको अंडे भी मिल रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टर्मिनेटर, ओके। नाउ कंट्रोल एस एंड गो हियर एंड रिफ्रेश, यू रिफ्रेश दिस, ये फिर भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहां सेव नहीं किया, ये वाला सेव नहीं किया ना, कंट्रोल एस, तो नहीं आना चाहिए था ना। अब अगर आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, because this JavaScript file is not linked with the index, so we need to link it, we need to what, टाइटल से पहले करना चाहिए। अब मैं यहाँ करता हूँ, क्या क्या लिखूंगा मैं, I have the script tag, no not link tag, it's a script tag, it's a, and here I say source, हमारे पास कौन सा फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट फोल्डर है ना, उसके अंदर हमारे पास है script.js, कंट्रोल एस, now it is working fine, okay, now it's working, right? So आपका जावास्क्रिप्ट कितना भी बड़ा होगा, हाँ, ये एक फोल्डर में कहाँ है, जो हमारा इंडेक्स है ना वो अलग फोल्डर है भाई, ये देखो इंडेक्स जो हमारा है वो इस बाहर वाले जावास्क्रिप्ट फोल्डर में, जो जावास्क्रिप्ट है वो इस वाले फोल्डर में, तो मैं इस फोल्डर से पहले मुझे जाना है इस जेएस फोल्डर में, ठीक है ना। देखो ये है ना जावास्क्रिप्ट, एक ही फोल्डर में नहीं रखेंगे, हमें अलग अलग है ना, मैं बताऊंगा, ये है जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर है, यहाँ देखो इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर, और जावास्क्रिप्ट है यहाँ का। अब आप सारा इधर ही रखोगे तो फिर जंबल नहीं होगा, हमारे पास कल सीएसएस है वो भी इधर ही है, वो भी अलग फोल्डर में रखेंगे ना, हमारे पास इमेजेस है वो अलग फोल्डर में रखेंगे, वीडियोस है अलग फोल्डर में रखो, हाँ। अगर हम एक ही फोल्डर रखें तो जंबल हो जाएगा कल, अभी तो सिंपल है, जैसे अभी तो सिंपल है, लेकिन जब कल बड़ी साइट बनेगी उसमें आपको 20-25 पेज अपने ही होंगे साइट के, और क्या छाड़ इसमें जावास्क्रिप्ट कुछ, सो इट इज बेटर टू क्लास ग्रुप देम इन सम फोल्डर्स, ठीक है ना, ओके ओके। सो दिस इज हाउ वी रन इट, ओके। सो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और अलग फाइल में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय टुमारो वी start formally the language from the variables and data types and all that, हाँ